جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، جہاں ہم سب حکومتی حلقے خاص طور پہ اور وہ لوگ جو معاشیت پر اکانومی کے ایشو پر بڑے پریشان تھے وہ کافی ریلیکس نظر آتے ہیں آئی ایم ایف کا جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس کے بعد. لیکن دوسری جانب جو ہم خدشات کی بات کرتے ہیں وہ جوں کے تو ہیں، کیونکہ اس سے نہ مہنگائی کم ہونے کو چانسز نظر آتے ہیں، نہ ہی پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ فوری طور پر ٹھیک ہوتے دکھائی دیں گے. تو اسی لیے اب لانگ ٹرم پلان کی جانب حکومت وقت نے اقدام جو کیا ہے، جس میں ایک بڑا انیشیٹو تو لمز کی صورت میں ہے، جس میں ایگریکلچر سیکٹر کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جائے گا تاکہ ہماری جو ایک اکانومی میں فوراً جو شیئر آ سکتا ہے وہ ایگریکلچر پروڈکشن سے آ سکتا ہے، وہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. دوسری جانب جو کلائمیٹ چینج کی جانب سے ہمیں خدشات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو بارشوں کا ایک رینڈم سلسلہ شروع ہوا ہے اور ماہر موسمیات یہ بتاتے ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک جاری رہے گا، تو اس کی وجہ سے بھی جو معاشی حالات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ قسمت ہم پر کس حد تک مہربان ہوتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے بعد جہاں روپیہ سٹیبل ہونا شروع ہوا ہے، وہیں پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں بھی بہتری آئی، اور خاص کر جو ٹریڈ ہے اس میں بھی امید ہے کہ بہتری آئے گی. ذرا ہم اس پہ بھی ہم بات کریں گے. جو آئی ایم ایف کی ٹیم ہے اس نے سیاسی پارٹیز کو اعتماد میں لیا، خاص طور پہ تحریک انصاف، چیئرمین تحریک انصاف سے ان کی جو ملاقات تھی اس میں چیئرمین تحریک انصاف نے اپنا اظہار رضامندی شو کیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے شرط بھی رکھ دی، اور شرط بڑی دلچسپ ہے. وہ شرط ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے. اب آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ سیاسی جو معاملات ہیں پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات، اس میں وہ کسی بھی صورت میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. تو یہ جو ایک کنڈیشنل ایگریمنٹ شو کیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ذرا ہم اس پہ بھی ہم بات کریں گے. نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کے جو خدشات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کی حکومت ہے تو یہ جو خدشات کم ہونے چاہیے تھے، پر ایسا ہے نہیں. پچھلے کئی مہینوں سے ان کی واپسی کو لے کے افواہیں گردش کرتی ہیں، پر وہ حقیقت میں پاکستان واپس نہیں آنا چاہ رہے، کیونکہ وہ دنیا بھر کے ملکوں میں اپنی ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، موومنٹس بھی ہیں، اور ان میں کئی سیاسی ملاقاتیں ہیں، بلکہ اب تو ان کی ساری جو ملاقاتیں ہیں وہ پاکستانی سیاست کے گرد گھوم رہی. تو ذرا ہم اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب عمار مسعود صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ ہیں چودھری جعفر اقبال صاحب. چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ میرے ساتھ ہوں گے، اگر جوائن کر چکی ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ. میں جوائن کر چکی ہیں. میں ذرا عمار بھائی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، کیونکہ ابھی تک تو یہ ہم نے آئی ایم ایف سے جو ملاقات ہوئی تھی چیئرمین تحریک انصاف کی، اس کے بعد ان کا کچھ کنڈیشنز لگا دینا، اس پہ آئی ایم ایف کا رسپانس بھی آ جانا، تو یہ جو کنڈیشن لگائی گئی ہیں چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے یا تحریک انصاف کی جانب سے، کیا آئی ایم ایف واقعی ان شرائط کو جو ہے وہ کنڈیشنز کو مان کر ان کا ایگریمنٹ مانے گی، یا آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کنڈیشن سے جو تحریک انصاف نے لگائی ہیں ان کو ذرا سائڈ پہ رکھے گی؟ سر، یہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو طریقہ کار ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ واقعہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے. اور آئی ایم ایف کا کنسرن صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں الیکشن ہونے والے ہوں اور وہاں پر انہیں کوئی قرض دینا ہو تو اس کے لیے وہ تمام سٹیک ہولڈر سے، تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ وہ دے رہے ہیں اس کی سیفلی واپسی کا کوئی نہ کوئی طریقہ، ہیلا، بہانہ وہ دریافت کر لے. اس لیے تمام سیاسی جماعتوں سے ملتے ہیں. 94 میں بھی اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے. اب جو صورتحال پیش آئی ہے اس میں شاید انہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کا علم نہیں تھا. 9 مئی کے بعد سچی بات ہے صورتحال بہت بدل گئی ہے. وہی لوگ جو کبھی لاڈلے ہوا کرتے تھے وہ قابل نفرین ہو گئے ہیں، ان کا نام تک لینا منع ہے. آپ خود چیئرمین تحریک انصاف کہہ رہے ہیں ان کا نام نہیں بول سکتے نا. تو وہ 9 مئی کے بعد حالات بہت مختلف ہو گئے ہیں، اور وہ میرے خیال میں ہائیبرڈ نظام کے تابوت میں آخری کیل تھی. اور اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن تو بہت دور کی بات ہے، بات شاید چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی یا جماعت کی نااہلی تک پہنچ جائے. جماعت کے حصے بکھرے ہو چکے ہیں. آئی ایم ایف نے یقیناً ان سے ملاقات کی اور اس موقع پہ انہیں انڈورس ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب شوکت ترین صاحب نے 2 وزرائے خزانہ کو فون کیا تھا اور اس میں انہیں آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑنے کا ایک طریقہ بتایا تھا.
वो आपके जहन में बात होगी। इस दफा ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने एक शर्त रखी, और वो शर्त ये रखी कि क्या इंतखाबात पाकिस्तान में वक्त पर होंगे या होने चाहिए, कैन यू गारंटी अस, इस तरह की कोई बात की है। अब देखिए, एक तरफ तो आप नारा लगाते हैं कि फलां हुकूमत ने, फलां मुल्क ने मेरे खिलाफ ये साजिश की, ये जुल्म किया पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर के साथ ये कर दिया। दूसरी जानिब आप खुद दूसरे ममालिक को और इवन के उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दर अंदाजी की दावत देते हैं। पिछले दिनों आपने कुछ इंटरव्यूज भी सुने होंगे फॉरेन प्रेस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, उसके अंदर भी ये कहा गया कि अमेरिका क्यों नहीं इस मौके पे मदाखलत करता। ये जो मुलाकात चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुई है, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर उस लॉबिंग फर्म का भी है, उस लॉबिंग क्लाउड का भी है, जिन्होंने बहरहाल ये इमरान खान को एक सियासी हकीकत के तौर पर तस्लीम करने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरे ख्याल में IMF को पाकिस्तान की सूरत हाल का पता नहीं है। अब हालात बहुत बदल गए हैं। अब इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में एक चीज और ऐड कर दें, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये नौबत पेश क्यों आई कि उन्होंने IMF को कहा कि मुझे श्योरिटी लेके दें कि वक्त पर इलेक्शन होंगे। मतलब IMF क्या इस पोजीशन में है कि वो ये यकीन दहानी करा सके या ये यकीन दहानी ले सके कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कब होने चाहिए और कैसे होने चाहिए? एक फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी पूरी हुई है। और बाकी वो उन्होंने ये सवाल क्यों किया, तो बहुत सारी बातों की हमें समझ नहीं आती, इसलिए कि वो हर 24 घंटे के बाद अपना बयान बदल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वो जिस तरह आजकल एक खौफ के, खदशे के हिसार में रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी बहुत दफा ये बात कर चुके हैं, मुझे फलां कत्ल कर देगा, मुझे फलां गोली मार देगा, महमूद खान ने मुझे बताया फलां शख्स रॉकेट लॉन्चर लेकर बैठा हुआ था। ये कोई सेम गुफ्तगू नहीं है। उनके लगता है कि उनके ऊपर जहनी दबाव है और वो क्लियर हेडेडली सोच नहीं रहे। तो ये उनकी इस बात को इस जुमरे में लगाया जा सकता है। इससे मकसद सिर्फ ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, बहाली और मईशत की बहाली में कोई रास्ता निकल रहा है तो उसको बर्बाद किया जाए। आपको याद होगा और उसको रोका जाए। मैं इस पर रिस्पॉन्स ले लूँ अमार भाई, इस पर लूँ। डॉक्टर जरका साहब हैं तहरीक इंसाफ। डॉक्टर साहब, एक तो वार्म वेलकम इन शो। मैम, बड़ी अच्छी बात तो ये थी, बड़ा अच्छा लगा कि आपने जब चेयरमैन से मुलाकात करने IMF वाले गए तो आपने अपनी सारी जो माशी टीम थी, जिन्होंने आपकी हुकूमती वक्त में मुख्तलिफ पोजीशंस पर पाकिस्तान की इकॉनमी को में अपना रोल प्ले किया था, आपने उन सबको ऑन बोर्ड भी किया। बट ये जो इतलात बाद में आई कि आपने IMF प्रोग्राम में यकीन दहानी कराई, बट वो कंडीशनल कर दी कि IMF से आप श्योरिटी ले रहे हैं कि इलेक्शन जो है अपने वक्त पे होंगे, तो ये क्या था मैम? ऐसा क्यों करने पड़ा आपको, तहरीक इंसाफ को? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो अभी सुन रही थी अमार मसूद साहब की बड़ी मतलब मैं बड़ा पुराना जानती हूँ इनको, बड़े इनके इज्जत का ताल्लुक है इनसे, मगर उनकी बात सुन के मुझे बहुत मजा आया। वो कह रहे थे ज़हनी इंतशार है। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे होंगे। इमरान खान साहब पे ज़हनी इंतशार है। जिन लोगों ने 170 केसेस 6 महीने के अंदर इमरान खान साहब पे बनाए, उन पे तो बिल्कुल कोई ज़हनी इंतशार नहीं है। और उन लोगों पे भी कोई ज़हनी इंतशार नहीं है जिन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने पहले कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि या हम होंगे या ये होगा, अब तो कोई और रास्ता नहीं है। तो माशाअल्लाह ज़हनी इंतशार सारा इमरान खान साहब पे, बिल्कुल हम मानते हैं। और जो आप बातें कर रहे हैं, आपकी पूरी कोशिश है, आपकी तो नहीं खैर, लेकिन जो PDM की हुकूमत है कि किसी तरह ज़हनी इंतशार हो जाए और इमरान खान साहब बाकी पाकिस्तान के पिछले लीडर्स की तरह मैदान छोड़ के मुल्क से बाहर चले जाए, जैसे पाकिस्तान के लीडर्स का शेवा रहा है। लेकिन अफसोस, ज़हनी इंतशार तो एक तरफ, उन्होंने जो ज़हनी इंतशार पाकिस्तान की लंगड़ी हुकूमत को दिया हुआ है, जिसको समझ नहीं आ रही कि दिन की नींद और रात का सोना उनका गायब है। अभी जबकि मेरा सवाल रह जाएगा, आपने सारा ही अमार साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसमेंटल भी हो गई,
माशाल्लाह इनकी अक्ल के ऊपर, मतलब हमारे हुक्मरानों की जो इतनी जबरदस्त सोच है उसके ऊपर लब्बैक ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा जो सवाल आपने रह बात की अपने यूरोपियन यूनियन और आपने IMF की बात की, जी। आज आपने रीना कियोंका जो हमारी यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनका भी आपने बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि GSP प्लस पाकिस्तान को दिसंबर में दोबारा से होने के चांसेस हैं, लेकिन हमारी टीम आएगी। और यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की जो पामाली हो रही है, उन्होंने PTI का इसके हवाले से नाम लिया और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शंस के हवाले से क्या हो रहा है इस मुल्क में, तो ये बातें इलेक्शन पे आता हूं मैं, मेरे सवाल का जवाब देना। IMF की टीम के साथ जो कंडीशन, समझदार हुकूमत का डंका बज रहा है जिसने पाकिस्तान जो 6% की डेवलपमेंट पे था, डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है। I don't need to ask question। नहीं, मेरी गल सुनो, आप लोगों के पास तो देखें, आपके मीडिया पे ना तो तहरीके इंसाफ के लीडर का नाम लिया जा सकता है, आप उनकी तस्वीर ब्लैंक कर देते हैं। हमारी बारी कहाँ चलती है? आप हमें प्रोग्राम पे भी बुलाते हैं और आप कहते हैं बोले ना। डॉक्टर साहिबा बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, बट नहीं आप सुन लें, आपने मुझे कटहरे में खड़ा किया, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, आपने 5 दफा इमरान खान का नाम लिया, मैंने आपको नहीं रोका, मैंने आपको प्रोग्राम में इनवाइट किया, आप तहरीके इंसाफ की मेंबर हैं। मुझे याद है आपकी हुकूमत में मरियम नवाज का चलता इंटरव्यू आपने बंद कर दिया था नदीम मलिक के शो में। मुझे याद है कि नवाज शरीफ अगर यूट्यूब और ट्विटर पे लिंक होता था तो आप वो PTA से कहकर बंद करा देते थे। आपने हामिद मीर को इतना अरसा ऑफर रखा, आपने नुसरत जावेद को नौकरियों से निकलवा दिया। मैम एक लंबी लिस्ट है, आपके साथ देखें वो चीजें नहीं हुई, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। मैं अच्छा, मैं भी आपको लिस्ट निकालती हूं। आपने तो मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया, आपने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया, मेरे शो में आपने 5 दफा नाम लिया, मैंने नहीं रोका। अगर पाबंदी होती तो मैं रोक देता। अमार मसूद ने 6 दफा खान साहब कहा, मैं पाबंदी होती रोक देता। कहां है पाबंदी, मुझे बताएं। अगर पाबंदी होती तो डॉक्टर जरका क्यों आती मेरे शो में? अगर पाबंदी होती तो सवाल खान साहब से रिलेटेड क्यों होता? मैम पाबंदी तब थी जब नवाज शरीफ को रोक दिया जाता था, पाबंदी तब थी जब फरियाल तालपुर को आधी रात को हॉस्पिटल लाया जाता था, पाबंदी तब थी जब हामिद मीर, तलत हुसैन और नुसरत जावेद घर बैठे थे। मतलब लेट्स बी फेयर मैम, लेट्स बी फेयर। मेरा सवाल कहीं बहुत पीछे रह गया मैम। अच्छा, आप मेरी भी बात सुन लें। तलत हुसैन, हामिद मीर और आपने बहुत से लोगों के नाम भूल गए, अब जरा अभी वालों का भी हिसाब कर लें। लेकिन गायब तो नहीं हुए थे ना। इमरान रियाज इस वक्त कहाँ है, मुझे बताइए, कहाँ है इमरान रियाज? कोई खबर है कि वो किधर है? हम उसकी भी आवाज उठाते हैं, लापता है। आप मुझे बताइए, हमने इदारों से कई दफा हमारे एंकर थे, उनको उठा लिया गया, फिर पता चला अमेरिकन नेशनल है तो वापस ले आए उनको। अरे यार, हमारे वी आर नॉट ऑन टॉपिक ना। जरका मैम मेरा सवाल देखें, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था। माय क्वेश्चन वाज वेरी स्पेसिफिक। आपने पहले अमार भाई को एड्रेस करती रही, फिर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। आई रिस्पेक्ट अ लॉट, बट मैम मेरा सवाल का जवाब दे दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। IMF से जो आपने शर्त रखी, व्हाट अबाउट दैट मैम? देखिए, IMF से शर्त तो क्या, मुझे बताइए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ऑलरेडी आइन को आप एक दफा तोड़ चुके हैं। आपने पाकिस्तान के आइन जिसके तहत पंजाब और KP की असेंबलीज डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने थे, क्यों नहीं हुए? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए और उन्होंने डेट दे दी, तो क्यों नहीं हुए इलेक्शन? इस मुल्क में आइन की क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे बताइए। तो अब आपका जिस तरह से चल रहा है, आपको लगता है, अब तो हमने सुना है कि एक साहिब हैं, नाम नहीं लूंगी, सब जानते हैं, जिनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए सोचा जा रहा है और उनके ऊपर अमेरिका में उनके ऊपर केसेस हैं। उन्होंने उसका फाइन भी दिया है। अब इस किस्म के लोगों को, यानी ये काफी नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे जिनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, जिस दिन आयद होनी थी उस दिन उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इसहाक डार साहब जो 166 का हल्फिया बयान दे के गए थे, उनको हम वापस मुल्क लेके आए, मनी लॉन्ड्रिंग का बयान दे के गए थे। और अब हम एक ऐसा कोशिश कर रहे हैं
जिसके ऊपर अमेरिका में फॉल्सिफाई करने का फेलनी का चार्ज। मैं इस पे आता हूँ, जो आपने प्राइम मिनिस्टर वाली खबर दी है केयर टेकर वाले, मैं इस पे आता हूँ। चौधरी साहब, वो मैम का फरमाना ये कहना ये है कि जो आईएमएफ से शर्त रखी है इलेक्शन की, वो बड़ी बजा है। ऑफ कोर्स इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, तो आईएमएफ से कहना कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप पे ट्रस्ट नहीं है। यू आर इन द गवर्नमेंट, आपने पंजाब में इलेक्शन नहीं कराए, तो आप वफाक में भी हो सकता है इलेक्शन ना कराएं, ये खदशा है तहरीक इंसाफ को। देखिए अदनान हैदर साहब, पहले तो मैं वेलकम करता हूं और अस्सलाम वालेकुम आपकी कैबिनेट है जिसमें के 60% से ज्यादा फेलन्स हैं, तो आपको किसको ट्रस्ट हो सकता है? चौधरी साहब का टर्न है, मैं आता हूं आपकी तरफ। जरका मैम चौधरी साहब। अच्छा, जी पूछिए। देखिए, पीटीआई की खासियत और खसूसियत ये है कि आप जो भी सवाल करेंगे, उन्होंने आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना। जो तोते की तरह रटा के भेजा गया है वो बिल्कुल पढ़ना शुरू कर देंगे और सुनाते जाएंगे। आप इनसे कोई काम का ढंग का सवाल पूछ लें, ये आपको जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय अपनी कहानियां सुनाने के। अभी बात इंतशार की हुई तो मुझे वो बिल जलाना याद आ गया, मुझे वो हुंडी के जरिए पैसे वापस मंगाना याद आ गया। तो वो इंतशार खान ही है, कौन कहेगा उसे? इमरान खान साहब इंतशार खान कहेंगे। फिर पार्लियामेंट के ऊपर हमला, फिर पीटीवी के ऊपर हमला, फिर आपने धरने के नाम पे क्या क्या वहां डी चौक में किया। और जब मौसूफ हुकूमत में आए तो अमेरिका में खड़े होकर पॉलिसी बयान दे रहे हैं, मुंह से पकड़ लूंगा। फिर कहीं से 15 किलो हेरोइन इकट्ठी की राना सनाउल्लाह खान पे डालने के लिए। फिर इन्होंने जेलों के अंदर एसी उतरवाने थे। कोई एक काम जो इन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए किया हो। और अभी नाम गिन रहे थे कि जी फलां भी गायब है, फलां भी गायब है। तो जरा वो एक शहजाद अकबर साहब हुआ करते थे और बड़ी बड़ी लंबी छोड़ा करते थे, उनके बारे में पूछ लें वो कहाँ तशरीफ फरमा है। फिर वो शहबाज गिल साहब, जिनकी जुबान जो है वो इतनी दराज थी, वो किसी बहू, बेटी और बहन का नाम सही तरह पुकारने के काबिल नहीं थे, वो इनके तर्जमान थे वजीर आजम के। क्या वो इंतशार नहीं? फिर कौमी असम्बली के अंदर 13 से 18 जो इन्होंने किया, और 18 से आगे अपनी हुकूमत में किया। मेरे सवाल का सर जवाब दे दे सर। वो मेरा सवाल ये है कि खान साहब को और तहरीक इंसाफ सबको ये खदशा है कि आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तभी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या आईएमएफ से ये शर्त कहना या उनसे कहना। देखिए, उन्हें ये खदशा नहीं है सर अदनान, उन्हें ये खदशा नहीं है। हमेशा जो भी बच्चा जमूरा होता है वो अपने मालिक की तरफ देखता है। तो ये अगर अपने मालिकों की तरफ नहीं देखेंगे, जिस मगरिब ने इन्हें पाला पोसा है और जिन्होंने इन्हें लॉन्च किया है, जो इनकी हर जगह वो इनको बड़े इंसानी हकूक याद आते हैं। देखिए, जब रियासत के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो बहुत सारे हकूक उसके सलब किए जाते हैं। अमेरिका के अंदर इन्हीं के एक जैसी सोच रखने वाले ट्रंप साहब, जब उनके हामियों ने हमला किया और जो तोड़ फोड़ की, क्या अमेरिका के अंदर उनको चार्ज नहीं किया गया? क्या सजाएं नहीं दी गई? अभी फ्रांस के अंदर पिछले दिनों में 3400 अफराद को पकड़ा गया है। क्यों? उन्होंने सड़कें ब्लॉक की, उन्होंने गाड़ियां नजर आतिश की, उन्होंने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बनाई। तो क्या इमरान खान साहब, इंतशार खान साहब, वो ये समझेंगे कि वो मेरे मुल्क को जलाएं, मेरे पार्लियामान की तौहीन करें, मेरे फौजी इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें? सर वेरी राइट। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो मार्केट में गर्दिश करते नाम है, जिनका हवाला डॉक्टर साहब अभी देर से पूछेंगे कि वो गर्दिश करते नाम फॉर द केयर टेकर पीएम, उसमें किस हद तक सदाकत है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अमार भाई, आप एक बड़े मुतारिक साफी हैं सर। ये जो मार्केट में वक्त से पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम लेना लोग शुरू हो गए हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं, परसेप्शन है, अंदाजे हैं या ख्वाहिशात हैं सर? हमेशा याद रखिए, जब लोगों को तो खबर नहीं मिलती तो फिर अफवाह, और फिर लोग कयास करते हैं। कयास में ख्वाहिशात शामिल होती हैं, ख्वाब शामिल होते हैं, और लोग अल्टीमेटली उसको अपनी खबर समझना शुरू कर देते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में शायद हम 4 लोग जो इस प्रोग्राम के में बैठे हैं, बाकी तकरीबन सारे वजीर आजम बनने के लिए तैयार है। 7-8 कैंडिडेट्स के नाम तो मैं भी देख चुका हूँ कि ये वजीर आजम बनेंगे, ये वजीर आजम बनेंगे। उसमें कुछ सहाफियों के नाम भी हैं,
कुछ सियासतदान भी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट भी हैं, कुछ मईशतदान भी हैं। तो मिक्स सा है। मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों जमातों से, और मैंने काफी कोशिश की आपके इस प्रोग्राम से पहले कि किसी तरह कोई नाम पता चल जाए, लेकिन यूं लगता है कि दुबई में फैसला हो चुका है, लेकिन दोनों जमातों की क़यादत ने ज़बान जो है वो अपने दांतों में भेज ली है, और वो बिल्कुल अच्छा, इस बारे ये चीज बताइएगा, ये चीज अमार साहब, ये जरा आपने खुद ही इशारा कर दिया, दुबई वाली मीटिंग में फैसले हुए हैं सर आपके इत्तलात के मुताबिक? मैं उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ जिसका मुझे काफी। दुबई की मीटिंग में जो एग्जैक्ट फैसले, जाहिर है इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात हुई है, इंटरम सेटअप के हवाले से बात हुई है, और मईशत की बहाली के हवाले से बात हुई है। 3 नकात पे बात हुई है, लेकिन उसमें जो मैनरिज्म, जो कंडक्ट, जो बॉडी लैंग्वेज मियां नवाज शरीफ का लग रहा था, जो हमारे जराए हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल जैसे 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर होता है उस तरह का कंडक्ट था। उन्होंने अपनी टेबल भी उस तरह सजवाई जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग कर रहा होता है। दूसरी बात यह है कि जिन अरब शयूख से और जिन लोगों से वो सऊदी अरब में मुलाकातें करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं। तो इसका मतलब है कि वो ना सिर्फ मईशत की बहाली के ऊपर चीजें कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ उन्हें यूं लग रहा है कि जैसे अब जो प्राइम मिनिस्टर का होता है वो उनकी दस्तरस से ज्यादा दूर नहीं है। ये बात उनकी बॉडी लैंग्वेज में उनके करीबी लोगों ने, उनके मैनरिज्म ने फील की है। ये तो बहुत बड़ी बात क्या जो पाकिस्तान का इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम तस्लीम करेगा सर? नहीं, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या मसला? अब तो एग्जिस्टिंग सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए सूटेबल हो गया ना। अब तो हाइब्रिड निजाम खत्म हो गया है, अब 1 पेज वाली कहानी खत्म हो गई है, अब इदारे न्यूट्रल हो गए हैं। सियासी जमातें अपना सियासत खेलें, जमहूरियत पे बात करें, वोट की सुप्रीमेसी पे बात करें, पार्लियामान की इज्जत की बात करें, तो अब तो कोई रुकावट नहीं है ना। मैं आगे बढ़ूंगा, एक चीज और ऐड करते हैं, ये जो गर्दिश करते नाम है उसमें ज्यादा मुस्तनद नाम कौन सा लगता है आपको? बतौर सहाफी आपका तज्जिया क्या कहता है? मेरे ख्याल में जो चंद सहाफियों के नाम हैं वो इतने काबिले गौर नहीं होंगे। अल्टीमेटली किसी मईशतदार का नाम आएगा। वेरी राइट। जरका मैम, एक तो कैसा लगता है जब इतना एक्टिव पॉलिटिक्स में अमार भाई को यकीनन आपने रिस्पॉन्स करना है, जो हाथ खड़ा किया आपने, ये उनका बड़ापन है कि वो उन्होंने पिछली बात का जवाब नहीं दिया। आप कर लीजिएगा, मेरा सवाल जरूर ले लें, उस पर रिस्पॉन्स भी कीजिएगा। एक बड़ा ऑफ कोर्स एक सियासी आपका शेयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन अब जब केयर टेकर सेटअप वफाक में बन रहा होगा तो केयर टेकर सेटअप में आपका कंट्रीब्यूशन, तहरीक इंसाफ का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, तो इस पर दुख होगा, अफसोस होगा, या क्या फीलिंग्स होंगी? जरका मैम। जी बहुत शुक्रिया। मैं देखिए, अमार साहब तो मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, और जो आपके जाफर साहब बैठे हैं वो भी मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू, जिस तरह से उन्होंने बात की, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन नून लीग का ये शेवा है कि किसी की इज्जत नहीं करते। मैं ये यकीन रखती हूँ कि अगर मुझे अपनी इज्जत करानी है तो मैं दूसरों की भी इज्जत करूंगी। जिस तरह से उन्होंने चेयरमैन पीटीआई का नाम लिया, जिस किस्म की बातें की, मुझे शर्म आई सुन के, अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि ये उनकी अपनी एक रिफ्लेक्शन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि यही बात जो वो आज चेयरमैन पीटीआई को कह रहे हैं हम भी उनको कह सकते हैं। ये हमारा ज़र्फ है कि हम बर्दाश्त करते हैं। वो ना भूलें कि उनकी पार्टी ने 1977 में सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया था। जस्टिस सज्जाद अली शाह की चीफ जस्टिस थे। इन्होंने अपनी कंटेम्प्ट का खत्म करने के लिए जो नवाज शरीफ साहब पे थी। तो देखिए, ये ग्लास हाउसेस में रहने वाले सब लोग दूसरों पे जब उंगलियां उठाते हैं तो ये भी याद रखें कि 4 उंगलियां अपनी तरफ भी आती हैं। बहरहाल, जो आपने कहा, बिल्कुल, देखिए जी, पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम है? मैं पार्लिमान का हिस्सा हूं, मैं आपको बता सकती हूं कि पार्लिमान की क्या वैल्यू है। पार्लिमान की तो कोई वैल्यू नहीं ना, आपने तो इस्तीफे दे दिए मैम। हम उसकी इज्जत करते हैं,
دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کیا ویلیو ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ ویلیو نہیں ہے۔ میرا کانٹیکسٹ دیکھیں، میرے سوال کا کانٹیکسٹ جڑا ہے آپ کے پارلیمان کو فعال ہونا پڑے گا۔ دیکھیے آپ بات کرنے دینا۔ جی میم، دیکھیے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، اب آپ میرا جواب تو سن لینا۔ جی میم، اس وقت اگر راجہ ریاض جیسے انسان کو آپ پی ٹی آئی کا ریپریزنٹیٹیو بنا کر پارلیمان میں آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا، نہ تو ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے، ایک لوٹا مطلب جو آئی ایم سوری فار دا ورڈ somebody جنہوں نے اپنی پارٹی چھوڑ دی، جو اپنی پارٹی ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی، تو وہ کس طرح سے پارٹی کو ریپرزینٹ کریں؟ لیکن ایک پاکھنڈ ہے، ایک ڈرامہ ہے جو ہمارے ساتھ رچایا جا رہا ہے۔ یہ جو پاکستان کی اشرافیاں ہیں اس میں جو لوگ بھی شامل ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا کہ 23 کروڑ عوام حساب لے گی کسی نہ کسی دن۔ آپ کو پتا ہے جب فرینچ ریولوشن آیا تھا تو کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہیں، کوئین میری اینٹونیٹ نے، انہوں نے کہا تھا روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لو۔ زرکا میم، آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہیں میم، ایز پر کانسٹیٹیوشن تو جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض، وہ ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے میم۔ آپ استعفے نہ دیتی، آپ اسمبلی نہ چھوڑتی تو یہ فلور ان کو نہ ملتا۔ تو جتنی رسپانسبلٹی آپ کی بنتی ہے اور کسی کی نہیں بنتی، یہ آپ نے کیا۔ یہ جو آج جہاں پہ سچویشن پہنچی ہے اس کی ذمہ دار تحریک انصاف خود ہے میم۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور سندھ ہاؤس میں جو زرداری صاحب نے ان کو پیسے دیے، کروڑوں روپے وہاں پہ ایکسچینج ہوئے، وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھا۔ اور جس طرح سے اپنا دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، اور جس طرح سے ابھی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کے لوگوں نے آ کے گالیاں دی چیف جسٹس کو، وہاں پہ مظاہرہ کیا، اور ان کو نہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا، نہ ان کے اوپر کوئی کیسز ہوئے، یہ بھی بالکل عین پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور آئین کے مطابق ہے، عین پاکستان کے قانون کے مطابق ہے۔ چوہدری جعفر صاحب، آپ ورکرز اس وقت جیلوں میں ہیں۔ میری گزارش سن لیں، 16 لوگ جو قتل ہوئے 9 مئی کو، 3 لوگ جن کی ٹانگیں کٹی اور ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، یہ بھی عین پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ سب کچھ عین پاکستان کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کے چودھری جعفر اقبال صاحب، تحریک انصاف کا ماننا ہے کوئی بڑی سیاسی جماعت ہے تو لہذا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کیا ان سے ان کا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہوگا کہ وہ کوئی رائے دے سکیں؟ کیونکہ وہ راجہ ریاض کو تو نہیں مان رہے کہ دے بلانگ فرام پی ٹی آئی۔ چوہدری صاحب، عدنان حیدر صاحب، ایسے ہے کہ جس شخص کو اپنی قوت کا اور اس کے اوپر جو اللہ نے کرم کیا اور پاکستانی عوام نے اعتماد کیا، اس کا خود احساس نہ ہو، کوئی دوسرا بھلا کیا احساس دلا سکے گا؟ آپ کو قومی اسمبلی کا رکن بنایا، آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا، آپ کو وزیر اعظم اس لیے بنایا کہ آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے باقی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا پسند نہ کریں، اور آپ کو اپوزیشن لیڈر جب بنایا 13 سے 18، آپ اپوزیشن میں تھے، تب آپ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری غلطیاں اور ناکامیاں عمران خان صاحب کی ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں شراکت داری ہوتی ہے، اور آپ کو دوسرے کی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے اور آپ کو کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آگے چلنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 342 کے ایوان میں اور 110 کے ایوان میں فل پارلیمان میں آپ کو 100% نشستیں چاہیے، آپ کو وہاں پہ اس طرح کی حاکمیت چاہیے جو ڈکٹیٹرشپ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر اسمبلیوں میں نہیں بیٹھے تو آپ کے ووٹر کا قصور نہیں ہے، اس مملکت خداداد کا قصور نہیں ہے۔ آج کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں حصہ ہونا چاہیے تو آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا اسمبلی میں، آپ بیٹھ کے اپنا اپوزیشن والا رول ادا کرتے۔ جب آپ حکومت میں تھے، ابھی کہہ رہے ہیں جی اس ملک کے اندر کوئی نظام نہیں ہے۔ بھئی اگر نظام نہیں ہے تو آپ کے اراکین قومی اسمبلی کیسے اسمبلیوں میں پہنچے؟ اور پھر ابھی انہوں نے بات لوٹے کی تو آپ کو وہ 18 کے الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب محاذ تو یاد ہوگا، آپ کو جہانگیر خان ترین صاحب کا وہ جیٹ طیارہ تو یاد ہوگا، آپ کو وہ آزاد اراکین کے بارے میں جناب عمران خان صاحب کا قول زری سر
वैसे मैं ब्रेक का कहा जा रहा है, डॉक्टर साहब हमारे साथ नहीं होंगी, आपका प्रोग्राम में वक्त देने का शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद नवाज शरीफ की वापसी पे अमार साहब से खबर लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमार मसूद साहब, आपने बड़े कॉन्फिडेंट से जो दुबई की मीटिंग थी उसका हवाला दिया और ऑफ कोर्स आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे, लेकिन ये जो आपने उनको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पेश किए, अगर इतने ही स्ट्रांग होते सर तो नवाज शरीफ को तो पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए था। जितने अरसे से वो डिले कर रहे हैं पाकिस्तान आना, हालांकि उनके अपने पार्टी की हुकूमत है, उनका भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो लगता है कि उन्हें किसी तरह का कोई खदशा या डर है पाकिस्तान आने का। सर आवाज आ रही है आपको? अमार भाई मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट करके जवाब दे दें। उनका शायद हमारा लाइन का प्रॉब्लम दोबारा कनेक्ट होता है। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये खबरें तो बहुत गर्दिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। उनकी लीगल टीम पाकिस्तान के अंदर उनके पर जो बैन है सियासत में रोल प्ले करने का, उसके खिलाफ जो बैटल है, लड़ने के लिए कागजात और चीज़ें वगैरह तैयार कर रही है, पूरी प्रिपरेशन कर रही है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब को दोबारा से अहल किया जाए अगले इलेक्शन से पहले, और अगले इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को अहल करने के बाद इलेक्शन भी लड़वाया जाए और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बनवाया जाए। क्योंकि दुबई में जो मुलाकातें हुई और उसके बाद सऊदी अरब और दीगर जो उनकी यूरोप में भी कुछ नहीं, वो सारी कड़ियाँ जो हैं वो इस कदर जुड़ी हुई हैं और वो वाज़े तौर पर ये बता रही हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो खुद इस बात का अदा कर चुके हैं और पूरी मुस्लिम लीग नून भी भरपूर तैयारी में है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म होंगे। अब उसके लिए जो कानूनी रुकावटें हैं, क्या नवाज शरीफ उनको हल कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह रिलीफ उन्हें दिया जा रहा है मुख्तलिफ कोर्ट से, उन फैसलों को पढ़ने के बाद तो ये लगता है कि शायद उनकी जो कानूनी टीम है पाकिस्तान के अंदर उन पर लगी पाबंदी के खिलाफ कामयाबी हासिल कर पाएगी और नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पर सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक बहुत बड़ी इत्तेहादी है जिसने पूरी PDM मूवमेंट को लीड भी किया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा भी किया, आज भी एक बहुत बड़ी शेयर होल्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत के साथ, तो क्या पीपल्स पार्टी का उसमें क्या शेयर होगा? क्योंकि आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो केस मिलिट्री एक्ट के तहत चलना और मिलिट्री कोर्ट्स में उनकी कार्रवाई होनी है, तो उस पर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ को भी हैं और आसिफ जरदारी साहब को भी हैं। लेकिन आसिफ जरदारी साहब इस बात के हामी नहीं है कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। तो दिस इज लॉन्ग डिबेट। अमार मसूद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अमार भाई जरा ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब सर वज़ीर आज़म बनने के लिए तो बड़े आप कह रहे हैं कि ही इज मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट चौथी मरतबा, पर वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, इसकी क्या वजह है? शायद उनका कनेक्शन प्रॉब्लम है। एनीवेज सूरत हाल जो बड़ी दिलचस्प इसलिए भी है कि अगले आवाज आ रही है उनको? आवाज नहीं। अच्छा, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प इसलिए भी है कि अगले कुछ महीनों में होगा क्या, क्योंकि केयर टेकर सेटअप के बाद मामलात चले जाएंगे इलेक्शन कैंपेन की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने अपने जोरों पर सियासत भी करेंगी और इलेक्शन की तैयारी भी करेंगी। अब किसके हिस्से में कितना वोट बैंक आता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो बड़े ज़ोरों शोर से कह रही है कि जो कुछ 9 मई के बाद हुआ है उससे पॉलिटिकल माइलेज तहरीक इंसाफ को मिला, तो क्या वो पॉलिटिकल माइलेज उनके वोट बैंक में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी जानिब जो केयर टेकर सेटअप आएगा वो कितने अरसे के लिए होगा, क्योंकि खदशात और अलामात तो ये शो करती हैं कि अगर केयर टेकर सेटअप में वज़ीर आज़म कहीं इकोनॉमिक एक्सपर्ट या फाइनेंशियल मैटर्स का एक्सपर्ट आ जाता है, जिसकी कभी इम्कानात हैं, तो केयर टेकर सेटअप लंबा भी चल सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट IMF के साथ हुआ, पूरा एग्रीमेंट जो है वो केयर टेकर सेटअप के साथ ही चल सके, क्योंकि जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं मोहसिन बेग का नाम लेके या दीगर सहाफ़ियों का नाम लेके, उसमें सदाकत नहीं है, वो देयर आर वेरी ऑन वीक ग्राउंड। सो अगला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही हो सकता है। ये इतलात हैं और खदशात भी कुछ इसी तरह के हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज का शो यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।